جی دیکھیے، عقیدے کے بعد ایمان کے بعد کوئی کہے گا کہ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، خطرہ ہے ایمان کا، قرآن کو جھٹنا لازم آئے گا۔ جو قرآن کی ایک آیت کو، ایک حرف کو، ایک نقطہ کو اگر کوئی انکار کر دے کیا ہوگا؟ کافی گیا۔ اللہ کو کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، ہاتھ سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ کیا ہاتھ رکھا، کیا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اللہ کو اگر ہاتھ مان لے تو ہاتھ ماننے کا مطلب یہ ہوا جیسے ہمارے ہاتھ ہے، اب ہاتھ کی کیا ہے؟ محتاج ہے نا بھائی؟ ہمارے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو کیا اللہ بھی ہاتھ کے محتاج ہے؟ اب اگر کوئی کہا دے کہ اللہ ہاتھ کے محتاج ہے پھر بھی کافی مسئلہ سمجھ رہے نا؟ ہاں خطرے کی بات ہے۔ تو جب اللہ ہاتھ کے محتاج، حالانکہ کیا کہا؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پھر کہتا اللہ ہاتھ کے محتاج بھی نہیں ہے۔ آپ کے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ کیا ان سلسلے میں، ان چیزوں کے بارے میں ایمان والا کا عقیدہ یہ ہے، اہل حق کی کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہاتھ مانیں گے، ثابت مانیں۔ کیا مانیں گے؟ ثابت۔ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہاتھ ہے؟ ہم اور آپ جیسے نہیں، وہ اللہ کے شایان شان ہے، جیسے اللہ ہے ویسے ان کے ہاتھ ہے۔ سمجھ بات کو؟ سمجھ گئے نا؟ ایک عقیدے کی بات۔ ہاں ایک فرقہ نکلا ہے وہ مانتے ہی نہیں، یہ بھی خطرہ۔ اب کوئی مان لے تو مان لے کیسے؟ ہم اور آپ جیسے، یہ بھی خطرہ۔ اس لیے عقیدے کی بات کیا بتایا کہ ہاتھ ثابت مانیں گے، لیکن کیسے مانیں گے؟ اس کے شایان شان، کب ان کی کیفیت وہ کس طریقے سے ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا تو بتا رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا، تو اپنا ہاتھ ان کے پیٹ پر رکھا اور نکالا، بہت سارے لوگ نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے کہ میں دیکھو تین بات کہی، دھیان سے کہا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ کیا کہا؟ جنت کے لیے پیدا کیا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اور ان کو جنتی اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا۔ کیا کہا؟ جنتی اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تیسری بات بتایا، اور یہ جنتی اعمال کرتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ کرتے رہیں گے۔ کتنے بات بتائی؟ یہ تو یہ کہا کہ میں ان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ جنت کے لیے۔ دوسری بات، یہ لوگ تو کس نے پیدا کیا؟ جنتی اعمال کے لیے۔ تیسری بات کیا بتایا؟ یہ لوگ یہ عمل کیا کریں گے؟ کرتے رہیں گے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم کے پیٹھ پر پھر ہاتھ کرا اور پھر نکالا۔ اب آگے کی بات سنیے، خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ دھیان سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ان کو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ کہا جنت کے لیے، دوسری مرتبہ نکالا تو کیا کہا ہے؟ ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اور ان کو میں نے جہنمی عمل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ کون عمل کرنے کے لیے؟ جہنمی۔ اور تیسری بات کہیے، جہنم والے عمل کرتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ کرتے رہیں گے۔ اللہ، جب حضور نے یہ حدیث پیش کیے تو صحابہ گھبرا، پھر سوال کیا کہ جب مطلب کیا ہے؟ یہ تقدیر کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے
जिसको जन्नत के लिए पैदा किया और जिसको जहन्नम के लिए पैदा किया, वो तो फाइनल हो गया। क्या हो गया भाई? हो गया ना? तो अब अगर दुनिया में इंसान कोई नेक अमल करे अच्छा कोई बद अमल करे तो अमल का कोई मतलब ही नहीं है कोई मतलब? अरे एक आदमी को जन्नत के उसी टाइम में घोषणा हो गया, फैसला हो गया कि वो किसके लिए है? जन्नत के लिए, जन्नती अमल करने के लिए। अब वो आदमी आखिर की दुनिया में कोई गुनाह भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कहां जाएगा वो? जन्नत में जाएगा। किसने फैसला किया? अल्लाह ने फैसला किया। है कोई रोकने वाला? तो क्या मतलब? अमल का कोई मतलब नहीं रहा। और एक आदमी को जहन्नम के लिए पैदा किया, इसके लिए बोलो, जहन्नम के लिए। और वो यहाँ आकर के नमाज पढ़ता है, क्या पढ़ के क्या मिलेगा? क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया है, बंदी की बात नहीं है। वो कहां जाएगा? जहन्नम में। तो साहबा यही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, तब तो अमल का क्या फायदा? अमल का क्या? आपको भी सवाल होता होगा, आपको भी सवाल हो रहा होगा, फिर अमल का क्या फायदा? आए समझ भाई? आए समझ बात? अमीर साहब करेंगे, बैठ गया हूं। तो साहबा ने क्या सवाल किया कि फिर अमल का क्या फायदा? अब आगे की बात सुनो। बता ये रहा हूं मैं कि हम और आप तो बहुत चीजों से क्या है? निस्बत है। ये बात है, सुनो ना जी, सुनिएगा आगे की बात, बहुत खतरनाक बात है, सुनो ध्यान से। आगे की बात क्या है? जब ये बात की है साहबा ने क्या, फिर हमारा अमल का क्या फायदा? तो सुनिए आगे अल्लाह ने क्या कहा। इन्नल्लाह इदा खलकल अब्द लिल जन्नती। सुनिए बात, हदीस के अल्फाज बोलना। क्या कहा? बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है, किसके लिए? जन्नत के लिए। इदा खलकल अब्द लिल जन्नती। आगे भी सुनिए क्या करे, तब क्या करता है? इस्तामलहु बी अमली अहलिल जन्नती। कहा जिस बंदे को क्या करता है? जन्नत के लिए पैदा करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसको जन्नती वाला अमल करने के लिए क्या करता है? जन्नती वाला अमल उससे करवाता है। इस्तामलहु, उसको क्या करता है? जन्नती वाला अमल करवाता है। अल्लाह, कौन करवाता है? अल्लाह ताला करवाता है। आगे की बात सुनिए, फिर कहा हत्ता यमूता अला अमलिन मिन अमाली अहले जन्नती। फिर क्या करता अल्लाह ताला? उनको जन्नती वाला अमल में से किसी अमल ही पर उसको मौत देता है। अल्लाह, कौन नंबर पर मौत देता है? हाँ, जिस अमल के बिना पर इंसान कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। कहा वही अमल वो दुनिया में कर रहा था, करते करते उसी हालत में क्या हो गई? मौत आ गई। आगे था फयुदखिलु बिही जन्नता। फिर क्या करता है अल्लाह ताला? फिर उसी अमल की वजह से उसको क्या करता है? जन्नत में दाखिल कर देता है। सुनिए बात, अरे सुन लिए, मैंने बताया था कि अमल से भी क्या है? हमें निस्बत है। अगर कोई आदमी जन्नती वाला अमल कौन है? नमाज पढ़ना कौन अमल है? बताओ। जहन्नम में जाने वाला कि जन्नत में जाने वाला? अरे बोलो, जन्नत में जी। अगर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझो अल्लाह नमाज पढ़वा रहा है। ये नमाज जन्नत वाला अमल है, ये जन्नत वाला अमल अल्लाह करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? जन्नत में दाखिल करने के लिए। देखिए हमारी निस्बत, अरे देखिए निस्बत कितनी बड़ी निस्बत है। हम यूं न समझे कि नमाज अरे मन चाहा तो पढ़ लिया, मन चाहा तो छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये अमल जो कर रहे हैं कर नहीं रही है, अल्लाह करवा रहा है। इस्तामलो
देखो हदीस का अल्फाज बोला इस्तामलहु भी अमली अहले जन्नती, जन्नती वाले अमल क्या करता अल्लाह ताला उससे करवाता है, अल्लाह करवाता है। हम खुद नहीं किए, हम खुद नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह पढ़वाया। क्या किया? अल्लाह पढ़वा, और आज अल्लाह पढ़वा रहा है। कल इंशाअल्लाह जब वक्त करीब आएगा तो क्या कहा? हत्ता यमूत अला अमलिन मिन आमाली अहले जन्नती। फिर क्या करेंगे? का वही जन्नती वाला अमल में से, नमाज डाले है जन्नती अमल बहुत सारे, रोजा रखना बोलो ये भी है जन्नती वाला अमल, सच बोलना, अरे बोलो ना, सच बोलना ये भी है जन्नत वाला अमल जी। ये सारे क्या है? क्या है? ये जन्नती वाला अमल है। तो अल्लाह ताला कर क्या करेंगे उसको? उसी जन्नती वाला किसी अमल के अंदर उसको क्या करेंगे? हम मौत दे देंगे। कब मौत होगी? कब मौत होगी? जब हम जिंदगी भर कोई जन्नती वाला अमल करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी मौत भी क्या होगी? अरे बोलो ना, कोई जन्नती वाला अमल के अंदर मौत होगी। हाँ, कभी तितर कभी बुटे, हाँ अरे बोलो ना, कभी कभी हटलो कभी सटलो, सब काम होगा जी। देख लीजिए, कहा वो जन्नती वाला अमल में से किसी अमल में क्या करेंगे? उसको मौत देंगे। फिर क्या करेंगे? हाँ युद्ध खिलुहु, युद्ध खिलुहु फीही जन्नता। फिर का उसी अमल की वजह से उसको क्या करेंगे? हम जन्नत का फैसला कर देंगे। जब तो आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो। वइदा खलकल अब्दा लिन्नारी, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा करता है, तो इसके लिए आगे की बात भी सुनो। जहन्नम के लिए पैदा करता है तो फिर क्या होता है? सुनिए आगे, कहा इस्तामलहु बी अमली अहली नार। तो क्या करता है? अल्लाह ताला उनसे जहन्नमी वाला अमल करवाता है। क्या करता है? अल्लाह करवाता है। कौन अमल? कौन अमल? जहन्नमी वाला अमल। ये कहता है नहीं, हम तो मजा उड़ा रहे, मजा नहीं उड़ा रहे हो, अल्लाह तुम्हें करवा रहा है, घबरा नहीं, गुनाह करके दीवाना बन रहे हो, गुनाह करके मुझे क्या समझता है? अरे बाप रे बाप, चोरी भी सीना चोरी भी, चोरी भी सीना चोरी भी कर नहीं रहो, अल्लाह करवा रहे हैं पकाने के लिए, घबराने। अल्लाह इस्तामलहु बि अमली अहली नार, अल्लाह ताला क्या करता है? उसको जहन्नमी वाला अमल करवाता है। करो, फिर क्या करता है? हत्ता यमूता अला अमली मिन अहली नार, मिन अमाली अहली नार। फिर क्या करता है? क्या उसको फिर उसी जहन्नमी वाला अमल के अंदर क्या करता है? मौत दे देता है। चोरी करना, बोलो कौन अमल है ये? जो पुरान काल में जाने पहले लोग कोठी बनाते, अब तो कोठी नहीं बनाता है, पहले क्या बनाते थे? कोठी, कोठी थे, कोठी। एक आदमी गया चोरी करने, सीन काटा, क्या काटा? सीन काटा, और पैर से घुस रहा था, सीन होकर क्या कर रहा था? घुस रहा था, और जो ही गया कोठी के बराबर की, कोठी सीने पे बैठ गया। कोठी क्या किया? अरे बोलो ना, सीने पर बैठ गया। देख लिए किस पर मौत आएगी? जहन्नम वाला अमल पर। किस पर मौत आई? देखो किस पर आई? अरे बोलो ना, अभी
हमारे नौजवान तबका क्या बताओ, ईयरफोन लगाते, ईयरफोन क्या लगाते जी? अरे बोलो ना, कौन फोन? हवा, ईयर माने क्या? हवे से बात होती है। और मोटरसाइकिल में चढ़ा, किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, वाक्या सुना रहा हूँ। किसमें चढ़ा है? बोलो ना, मोटरसाइकिल में। अच्छा, मोटरसाइकिल में बैठो तो देखो अजीब खेला है, उसका एक्शन होता है ना, बैठने का सीट ऐसे बनाया जाता है, बड़ा पन बिठाता है। मैं भी कुछ हूँ, देखना मोटरसाइकिल में बैठोगा तो बैठो तो देखना एक्शन अजीब होता है एकदम। क्या मतलब? मैं कुछ हूँ, सीटे से बनाता है, समझ गए? हाँ, बैठा कि मैं कुछ हूँ, और कान में क्या लगा लिया? ईयरफोन। क्या सुन रहा है? गाना। अरे बोलो ना, गाना सुन रहा है, गाना, फिल्म नहीं, हाँ? तकरीर नहीं, नाच नहीं, क्या सुन रहा है? अरे बोलो ना, गाना। इसका गाना बता दो, अगर तो तरीके से बोलना पड़ता है, पूरी दुनिया जानती है। नाच धर्म कौन करती है? जिसको दुनिया रंगी करती है। क्या कहती जी? बोलो ना, उसकी इज्जत में कोई ठेकेदार है कोई ठेकेदार? सारी दुनिया जानती है। ये क्या है? उस रंगी की एक्टिंग कौन कर रही है? ये कर रही है। आप उसको ये किस में सुन रहा है? कान में सुन रहा है। ये भी अमल है। ये अमल कौन अमल है? जन्नत वाला, जहन्नम वाला? हाँ, पूरी जिंदगी वही सुनता रहा। कहा, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, वो गाना सुन रहा था। आगे पुल है, क्या है आगे? पुल। पुल में टर्निंग था, क्या था? टर्निंग। लेकिन बताए ना, जब इंसान बैठता है कुछ और समझता है कि किसी में और दुनिया में हो। आगे बढ़ा, आगे जो मोड़ लेने लगा, गाड़ी नहीं संभल पाई, गाड़ी सीधा चली। पुल को पार करके कहां चल गया? नदी पर। कहां जा? नदी। गिरते ही गर्दने टूट गया। समझ गए? जब हमारी जमात थी तो कहा कि देखिए अभी ऐसे ऐसे घटना हुआ। मेरे बात किस्सा नहीं बता रहा हूं, वो क्या सही बात गुजरा है। देखिए वो किस पर आई? किस पर आई? जहन्नमी वाला अमल पर। देखिए, कहा कि देश को, जिस बंदे को किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो ना, जहन्नम के लिए। करे मैं उनको क्या करता हूँ? जहन्नमी वाला अमल करवाता हूँ। क्या करता हूँ? करवाता हूँ। इस्तामल हो, यह बात है, इस्तामल। फिर क्या करता हूँ? फिर मौत दिया, किस पर? वही जहन्नमी वाला अमल पर। क्या किया? उनको मौत दिया। अब फिर आगे कहा, नार। फिर क्या करता हूँ? उसी अमल की वजह से उसको जहन्नम में डाल देता हूँ। कहा डाल देता हूँ? देखिए भाई, किसी आदमी को जन्नती वाला अमल करने की तौफीक मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। क्या ये? बहुत बड़ी बात है ये। और किसी आदमी को जहन्नमी वाला अमल अगर कर रहा है तो यूं ना समझो कि चलो कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करोगे। खुद सोच लो तुम कहां जा रहे, तुम कहां जा रहे। देखिए भाई, देखे ना, अमल कितनी बड़ी चीज है। अब आगे की बात सुनिए। कहा यहां सवाल क्या सवाल है? अमल का क्या फायदा? यानी कहा अमल का क्या फायदा? ये है फायदा कि अगर कोई आदमी जन्नती वाला अमल के अंदर क्या किया है? क्या है? अगर वो शामिल है, जन्नती वाला अमल कर रहा है, तो समझो कि वो जन्नती है। यह है पहचान। एक और मौके में ये सवाल हुआ तो क्या कहा कि जो जिसके लिए पैदा किया गया है, अल्लाह ताला उनको वही अमल करने के लिए आसान कर देता है। क्या कर देता है? आसान कर देता है। क्या मतलब? अगर किसी आदमी को जहन्नम के लिए पैदा किया है
تو جہنمی والا عمل اس کے لیے کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. سمجھ گئے جی؟ نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ جنتی عمل ہے کہ جہنمی عمل ہے؟ جنتی عمل. زنا کرنا بولو، ہم آپ ہی سے پوچھیں گے. سیدھی سی بات ہے. کہا آج نکاح کرنا بھاری ہو گیا. ارے بولو نا، نکاح کرنا اور زنا کرنا آسان. اگر کسی کے بہو سے، کسی کے بیٹی سے، کسی کے بہن سے اگر کرنا چاہے، منٹوں میں کام بنا لے گا، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گی. اب پتہ نہیں چلے گی. سوچو کہ عمل کہاں لے جانے والا ہے. حضور کے فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، کہ جس آدمی کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ عمل اس کے لیے کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. یہ سمجھ ہم چٹکوں میں کام بنا لیے، چٹکوں میں نہیں. تمہارا یہ کام آسان ہو گیا کیونکہ عمل کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے. کہا اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. پتا چلا اس نے جہنم میں عمل کرنا کیا تمہارے چٹکی کا مسئلہ ہو گیا. صحیح بات کر رہا ہوں. جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، بتاؤ تو اس کو نماز پڑھنے میں کتنے آسان ہے کہ بھاری ہے؟ کیا ہے بولو؟ ارے ٹرین میں جا رہے ہیں، چلیں گے ٹوائلٹ میں چلیں گے، جو رسمی فارغ ہو گئے، اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ کیا لگا ہوا ہے؟ ہاں، پیر ہاتھ دھونے کی، وہ تو کلی کرنے کے لیے ہے. اسی میں وضو بھی بنا لیے. الحمدللہ آپ سیٹ پر آ جائیے. کوئی کافر بھی بیٹھا ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں، وہ بیچارہ جگہ دے دیتا ہے اور وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. کہا نماز پڑھنا سے کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا، آسان ہو گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی والا عمل کرنا آسان کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ آرے سمجھو بات آ رہی نا؟ جس کو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ عمل کیا اس کے لیے کرنا. سمجھ گئے بھائی؟ کثیر مسئلہ سمجھ گئے نا کہ عمل کو آپ